everyone, this is Deepa. Students, we are going to discuss chapter 3 of history. The name of the chapter is The Delhi Sultans. So, today we are going to learn about Delhi Sultans. In the previous chapter, did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because of Delhi became an important city only in the 12th century. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. The city was inhabited by many Jain merchants who also constructed a number of temples. Coins, known as Deliwal, were minted here and had a wide circulation. स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में दिल्ली का नाम भी नहीं सुना था. वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द दिल्ली एज इट्स कैपिटल. ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट शहर, एक बहुत मुख्य सिटी बनी कब? 12th सेंचुरी में. दिल्ली पहली बार तोमर राजपूत के अंडर कैपिटल ऑफ किंगडम बनी. It was under the Tomar and Chauhan that Delhi became an important commercial center also. तोमर्स और चौहानों के शासनकाल में ही दिल्ली एक मुख्य कमर्शियल सेंटर बन गई. मतलब जहाँ बहुत व्यापार होता है ऐसा केंद्र बन गई, व्यापारिक केंद्र बन गई. द सिटी वॉज इनहेबिटेड बाई मैनी. वहाँ पर बहुत सारे जैन मर्चेंट्स, जो जैन व्यापारी थे, वो रहते थे दिल्ली में, और उन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया था. वहाँ पर दहलीवाल नाम के सिक्के पिघलाए जाते थे, बनते थे, मिंट किए जाते थे, जो कि उस समय बहुत प्रचलन में थे. नाउ मूव टूवर्ड्स Delhi Sultanate played the most vital role in the transformation of Delhi into a capital which controlled vast areas of the subcontinent. Here we can see the 5 dynasties and तोमर्स में अनकबाल जी थे एंड चौहान्स, जो कि अर्ली तुर्किश रूलर्स भी रहे. उसके बाद खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी and the Lodi dynasty. These are the 5 dynasties which ruled over Delhi. दिल्ली सल्तनत ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल, मीन्स वेरी इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी रोल प्ले किया है दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करने में, दिल्ली को एक कैपिटल बनाने में, जो कि एक बहुत बड़े सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप के इलाके को कंट्रोल करती थी. Now move towards the story of Delhi Sultanate. After the death of Muhammad Ghori in 1206 AD, his Indian empire passed on to hands of his viceroy Qutbuddin Aibak. As he had no successor, he later became the founder of the slave dynasty. The Delhi Sultanate was established by Qutbuddin Aibak in 1206 AD. Altogether, 5 dynasties from 1206 to 1526 AD formed Delhi Sultanate. मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लगभग 1206 AD में जो इंडियन एम्पायर था वो किनके हाथों में शिफ्ट हो गया, जो कि मोहम्मद गौरी के वायसराय थे कुतुबुद्दीन ऐबक. क्योंकि उसके पास कोई भी वंशज नहीं था, कोई भी उसका मतलब पुत्र वगैरह नहीं था, उसके वंश में कोई नहीं था, इसलिए. उसके बाद स्लेव डायनेस्टी का वो व्यक्ति फाउंडर बन गया और दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 AD में. इसके साथ साथ 5 डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का फॉर्म किया है, बनाया है.
उसमें जो टाइम पीरियड लगा है वो 1206 टू 1526 AD तक का समय है. Now move towards the 5 major dynasties. The first that is Rajput dynasties, in which Tomars and Chauhans were included. Tomars में Anagpal ruled 1130 to 1145 and Chauhans ruled 1165 to 1192, in which Prithvi Raj Chauhan ruled 1175 to 1192. Early Turkish rulers, in which Qutbuddin Aibak, Shamsuddin Iltutmish, Razia, Ghiyasuddin Balban are included. They ruled 1206 to 1219, in which 1206 to 1210 Qutbuddin Aibak ruled, and after that 1210 to 1236 Shamsuddin Iltutmish, and after that 1236 to 1240 Razia rules, and after that Ghiyasuddin Balban, who ruled 1266 to 1287. After that Khalji dynasty started to rule on the Delhi, in which the time period of Khalji dynasty is 1290 to 1320. The first one is Jalaluddin Khalji. Jalaluddin Khalji ruled 1290 to 1296 and Alauddin Khalji 1296 to 1316. After that Tughlaq dynasty existed. 1320 to 1414 Tughlaq dynasty ruled over Delhi, in which Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq are included. 1320 to 1324 Ghiyasuddin Tughlaq ruled over Delhi. Then 1324 to 1351 Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq during 1351 to 1388. Afterwards, Sayyid dynasty takes charge of Delhi, in which Khizr Khan took charge during 1414 to 1421, and afterward Lodhi dynasty, in which Bahlul Lodhi ruled during 1451 to 1489. So these are the 5 dynasties who ruled over Delhi. Now move towards finding out about the Delhi on the page number 32. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Tariq, which is in singular, and Tawarik in plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultanate. Tawarik were written by the learned men, secretaries, administrators, poets, courtiers who lived in cities, mainly in Delhi. They were written for the sultans with an anticipation of rich awards. दिल्ली सुल्तान के बारे में और जान रहे हैं हम यहाँ पे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो थी वो हमको इंस्क्रिप्शन से मिल जाती थी, कॉइन्स और आर्किटेक्चर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूँ ही मिल जाती थी. स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज़, लेकिन इतिहास की जो जानकारी थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी पर्शियन, उसमें लिखी जाती थी. उस हिस्ट्री को हम सिंगुलर वर्ड में तारीख बोलते थे और प्लूरल में मतलब बहुवचन में तवारीख बोलते थे. ये इतिहास के बारे में थे, जो राजा शासन कर रहा था उसके टाइम पीरियड में उसके बारे में लिखना कि कैसे उसने शासन किया और कैसे वहाँ का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में लोग लिखते थे. तवारीख जो लोग होते थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और लर्नड मैन माने जाते थे.
उनमें कुछ सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते थे, कुछ पोइट्स होते थे और कुछ कॉटियर्स यानी दरबारी होते थे, जो कि मेनली दिल्ली में ही रहते थे। और ये जो भी कुछ लिखते थे ये स्पेशली सुल्तान्स के लिए लिखते थे। और विद एन एंटिसिपेशन ऑफ रिच अवार्ड मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेशन? द स्टेट ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग, मतलब उनको कुछ चाहत थी कि वापस भी कुछ मिले। और वो एंटिसिपेशन क्या था? रिच अवार्ड्स, वो बदले में रिच अवार्ड्स चाहते थे, बहुत अच्छे अवार्ड्स चाहते थे। किससे? सुल्तान से। सो नाउ मूव टूवर्ड्स टू नेक्स्ट स्लाइड. They also advise ruler of governance, emphasizing the importance of just rule based on birthright and gender distinction, not shared by everyone. यहाँ हमने देखा कि जो ये लोग थे, जो राइटर्स थे, तवारीख लिखने वाले लोग थे, ये मेनली दिल्ली में ही रहते थे, कभी गांव वगैरह में नहीं रहते थे। और ये लोग बर्थ राइट को इम्पोर्टेंस देते हुए वैसा ही लिख देते थे, और ये नहीं चाहते थे कि जो यहाँ की रियल सिचुएशन है, जैसे कि जेंडर डिस्टिंक्शंस वगैरह हैं, ये सभी लोगों को पता चले। ये इन सब चीज़ों को राजा की तरफ से आदेश थे कि इन सब चीज़ों को छुपा कर ही रखते थे वो लोग। और बस सुल्तान्स की जो होती थी वो सिर्फ मेरिट्स के बारे में ही लिखते थे, मतलब क्वालिटीज़ के बारे में ही लिखते थे, कोई भी डिमेरिट के बारे में नहीं लिखते थे। Razia, the daughter of Sultan Iltutmish, became the Sultan of Delhi in 1236, but she was removed from throne after 4 years, 1240, only for being a woman, and she was unacceptable to the nobles. जो इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया, उस टाइम पर इल्तुतमिश सुल्तान थे, 1236 के अराउंड उसको रज़िया को सुल्तान बनाया गया। क्यों? बिकॉज़ वो अपने जो 4 ब्रदर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, सबसे ज़्यादा कैपेबल, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी। लेकिन वहाँ का जो सोसाइटी का जो सोसाइटी की जो थॉट्स वगैरह थे वो इतने पुअर थे कि वो वुमेंस को बहुत इन्फीरियर मानते थे। और इसकी वजह से सिर्फ कि रज़िया एक वुमेन है, इसलिए वहाँ के जो नोबल्स थे, जो कोटियर्स थे, जो वहाँ के क्रॉनिकल लोग थे, उन लोगों ने रज़िया को एक सुल्तान एक्सेप्ट नहीं किया एंड उसको सिंहासन से हटा दिया 4 साल बाद 1240 में। Now move towards new slide. The circle of justice. It is given on the page number 32, bottom of the right side. That in which Fakr Mudabbir wrote in the 13th century that a king can't survive without soldiers, and soldiers can't live without salaries. Salaries come from the revenue collected from the peasant, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. इसमें था न्याय चक्र, ये द सर्कल ऑफ जस्टिस है। न्याय चक्र के बारे में कहा था फ़क्र मुदब्बिर ने 13th सेंचुरी में कि एक राजा बिना सैनिकों के नहीं रह सकता है, और जो सैनिक हैं वो बिना वेतन के नहीं रह सकते हैं, बिना सैलरी के नहीं रह सकते हैं। और ये जो सैलरी है वो कहाँ से आती है? जो हम फार्मर्स से, पीजेंट से, किसानों से रेवेन्यू यानी कि राजस्व कलेक्ट करते हैं। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन देन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। लेकिन वही किसान तभी केवल राजस्व दे पाते हैं जब वो बहुत खुश हों, खुशहाल हों और समृद्ध हों। ये तभी पॉसिबल है जब जो वहाँ का किंग है वो जस्टिस को प्रमोट करेगा। राजा जो है ऑनेस्ट गवर्नेंस करेगा। गवर्नेंस मीन्स होता है द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट,
यानी कि उस क्षेत्र को न्याय के साथ और ईमानदारी के साथ चलाएगा और न्याय को बहुत महत्वपूर्ण समझेगा. On the page number 32, in the figure 1, there are 4 stages given for the making of manuscript. Manuscript means Pandulipi, which we have read in the 6th class, in which 4 stages are there. First one is preparing the paper, second one is writing the text, third one melting gold to highlight important and words and passages, and after that last one preparing the binding. इसमें इन्होंने ये लिखा कि पांडुलिपि किस स्टेजेस से गुजरती थी. सबसे पहले कागज़ को तैयार किया जाता था, उसके बाद उस पर टेक्स्ट लिखा जाता था, मतलब जो भी लिखा जाना है वो लिखा जाता था, और फिर उसमें गोल्ड मेल्ट करके कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी उनको हाईलाइट किया जाता था, सोने से मतलब उकेर दिया जाता था. जैसे कि आजकल हम अपनी बुक्स में देखते हैं कि बोल्ड फॉर्म में या फिर इटैलिक या फिर डिफरेंट कलर से कुछ भी हाईलाइट करके लिखा जाता है, सो दैट कि हमको ये पता चल जाए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पैसेजेस को उसमें हाईलाइट कर दिया जाता था, एंड फिर उसके बाद उसको बाइंड कर दिया जाता था, यानी रीडेबल मतलब पढ़ने के लिए रेडी कर दिया जाता था. नाउ मूव टूवर्ड्स अ न्यू स्लाइड in which the thoughts of Minhaj Israj was written. Minhaj Israj thought that Queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked in the register of God's creation, since her account didn't fall under the column of men, how did she gain from all her excellent quality? Minhaj Ansari, this was whatever he said, Minhaj Asiraj about the Razia, उन्होंने कहा कि जो क्वीन का रूल था, यानी कि जो रजिया का शासन था, वो जो आइडल्स जो मतलब आदर्श समाज था, उनके जो नियम है उसके विरुद्ध था. जो हमारे भगवान ने बनाया है, ये जो सोशल ऑर्डर है क्रिएट किया है गॉड ने, इसमें माना गया है कि जो वुमेन है वो सबऑर्डिनेट है मैन से, यानी कि वो सुपीरियर नहीं है मैन से, इन्फीरियर है और वो उनके अंडर वर्क करती है. फिर फर्दर उन्होंने कहा कि जो गॉड का एक रजिस्टर है, गॉड्स की क्रिएशन का रजिस्टर है, उसमें कहीं भी वो कहीं पर भी रज़िया का नाम नहीं आता है. वो ये इतनी सारी गुड क्वालिटीज़ हैं उसके पास, जो बहुत एक्सेलेंट क्वालिटीज़ हैं. इससे उसको क्या मिला? इससे उसको कोई फ़ायदा नहीं है कि वो एक वुमेन होकर के इतनी सारी क्वालिटीज़ रखती है, तो उसको सुल्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ के नोबल्स भी उसे सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. आफ्टर रज़िया, रुद्रमा देवी ड्यूरिंग 1262 to 1289 रूल्ड. ये जो रज़िया रुद्रमा देवी थी, इनकी एक स्टोरी थी कि इन्होंने एक एलिजन क्रिएट कर दिया था, भ्रम क्रिएट कर दिया था लोगों के अंदर कि वो एक मेल हैं जबकि वो फीमेल थी. मतलब इस चीज़ को साबित करने के लिए कि उन्होंने फ़ीमेल होकर भी बहुत अच्छे से शासन किया. शी बिलोंग्स टू द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, and this Warangal is a part of modern Andhra Pradesh. And after that रुद्रमा देवी pretend she was a man. उन्होंने मतलब ये मान लिया कि वो एक तरीके से वो ऐसा दिखाती थी कि वो एक मैन है, और उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया. उसके बाद कश्मीर से बिलोंग करती थी दिद्दा ने रूल किया, जिनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सा टाइटल है दिद्दा. ऐसा माना जाता है कि ये जो दिद्दा वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम वर्ड दीदी विच मीन्स एल्डर सिस्टर, जिसका मतलब बड़ी बहन होता है. उस वर्ड से ही दिद्दा को लोगों ने उनको अफेक्शन के साथ और फॉर शोइंग देयर लव उनको एल्डर सिस्टर मान लिया और उनको एक टाइटल दे दिया दिद्दा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट our chapter, and further for the garrison town we will discuss in the next video. We'll discuss about the garrison towns,
how Delhi Sultanate expanded from garrison town to empire. Thank you very much for the listening me, and we'll meet again with a new video. Thank you.